I don't know why my Wi-Fi is working weirdly. So if there is some technical issues, some glitches, so better handle it. Okay. So I am Arya, and today me, Ritika, Stuti, Aditya, and Shiva are here to demonstrate you the whole concept of client counseling. Now, first of all, I want to know from you guys कि जब आप क्लाइंट काउंसलिंग के बारे में पहली बार सुनते हो, so what comes in your mind quickly? What clicks in your mind? Anyone? कुछ भी बोलो. जब भी that आप how क्लाइंट काउंसलिंग that how we will manage our clients doubts or queries if he come with to us for her case or his case. yeah. Anyone else? How to address problems of our clients. Yeah. So basic meaning of client counseling is just कि the when the client when the client enters to your chamber with his or her problem, how do you deal with it, and what legal remedies you give to him. So basically, counseling is all about giving your client all the information he or she needs or related to their case or problem in order to make decision. Counseling is one of the main functions of lawyer. You might be thinking client counseling is just a little part of law professional job, but no. Client counseling is the art and science of talking, understanding, observing, and culling the truth out of the potential client. In the process of counseling, usually the lawyers exercise a great deal of power in controlling outcome of the counseling, guiding their clients through decisions, making the clients a passive spectator. In the end, counselor ends up making decision for the client, because at the end of the day, legal remedies and all the legal only the lawyer is the one जिसको लीगल वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता है. एंड उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम सही डिसीजन ले अपने क्लाइंट के लिए. ठीक है. सो बेसिक जो थंब रूल होता है एक क्लाइंट के साथ काउंसिल करते हुए टाइम यूज करने का, इज दैट आप उस क्लाइंट को सबसे पहले तो जैसे ही वो आपके चैम्बर में एंटर करे, आप उसको बिल्कुल ही कंफर्टेबल कर दो. ठीक है. जब वो क्लाइंट कंफर्टेबल होगा तभी वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है, अपनी सारी बातें जो है वो आपको बता पाएगा. एंड उसके साथ बहुत पोलाइटली एंड इमोशनली आप उसके साथ एक कनेक्ट बनाओ. ठीक है. एंड जस्ट ट्रीट हिम लाइक you guys are not meeting for the first time, as you are knowing that person for a very long time. And while counseling, prepare checklists कि छोटे छोटे फैक्ट्स कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो इस मंथ में हुआ. ओके. फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो इस मंथ में हुआ. बिकॉज एवरी माइनर डिटेल काउंट्स व्हेन द केस इज फ्रेम्ड. देन कीप आस्किंग कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट का डिवोर्स होने वाला है कि अच्छा आपका हस्बैंड आपको मारता पीटता था, वर योर चिल्ड्रन वर देयर व्हेन द हरासमेंट वाज बीइंग डन बाय यू. सच माइनर डिटेल्स आल्सो आई विटनेस बनता है. क्लाइंट की सिचुएशन एनालाइज करना, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ बंच ऑफ थिंग्स जो क्लाइंट काउंसलिंग में ध्यान रखना पड़ता है. उसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन आज हम आपको देंगे. एंड क्लाइंट काउंसलिंग बहुत इन लेटर फ्यूचर एज अ लॉयर बहुत 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 ज्यादा काम आता है. बिकॉज अभी से ही आप प्रैक्टिस करोगे तभी जब रियल लाइफ में क्लाइंट्स आएंगे, देन यू विल एबल टू टैकल देम वेरी वेल. एंड यू बाय दैट टाइम आपको पता होगा कि उनसे कैसे सवाल पूछने हैं, किस तरीके से पूछने हैं. बिकॉज you can't be brutal and straightforward and practical to each and every client. सबका अपना अपना मेंटल स्टेट होता है एंड सबको आपको कंफर्ट करना ही पड़ता है.
no doubt you have to give practical outcomes and remedies, but you have to be emotional with them. So now Ritika will tell you about the rules and the guidelines which we follow in client counseling competition. Ritika? Yeah, I'm audible. thank you, Arya. Just a minute. Okay, yes, student. The very first the introduction about the client counseling, client counseling, how it is conducted. To start with the introduction, जैसे अभी आर्या ने बताया कि जैसे कोई client आपके पास आता है तो उसको comfortable feel कराना है and discover minute detail from client ए टू जेड जो आप जैसे आपको कंसेप्ट पता है, जैसे अभी आर्य ने कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया आपको ना कि भी डेट क्या थी है ना, टाइम क्या था उसका है ना, और कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ कॉन्ट्रैक्ट, कहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है ना, बिकॉज टू असरटेन द जुरिसडिक्शन पार्ट। ठीक है भी, कहाँ पे जैसे आपने कहा कि बॉम्बे में जैसे अभी मूड प्रॉब्लम था ना, उसमें एक बॉम्बे था और एक चेन्नई था ना, दोनों में कहाँ पे किस कोर्ट को जुरिसडिक्शन होगी ना, तो ये हम फॉर्म कर सकते हैं कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे फॉर्म हुआ या कोजोफेक्शन कहाँ पे अराइव हुआ। ये सब डिटेल्स माइन्यूट से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से अपना जुरिसडिक्शन पार्ट भी देखना होता है कि भी ये कोर्ट को जुरिसडिक्शन है या भी है या नहीं, है ना। ये नहीं है जी हाँ जी ठीक है जी आ जाओ जी हम आपको रेमेडीज दे दें, ये जो एटिकेट्स है ये नहीं होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही सीखेंगे कि भाई क्लाइंट के साथ डीलिंग कैसे करते हैं, है ना। सो अब इसके रूल्स क्या होंगे? यस रितिका, explain the rules of the client counseling. Yes, sir. So basically क्या होता है कि 3 राउंड्स होते हैं क्लाइंट काउंसलिंग कंपटीशन में। द फर्स्ट वन इज प्रीलिमिनरी काउंसलिंग, फिर उसके बाद होती है सेमीफाइनल एंड देन देयर इज काउंसलिंग सेशन। जो हर राउंड के अंदर देयर इज कंसल्टेशन, देन पोस्ट कंसल्टेशन एंड देयर आफ्टर दैट देयर इज क्रिटिक। जो कंसल्टेशन होती है दैट इज फॉर 21 मिनट्स। आपको 21 मिनट्स दिए जाएंगे, आपके पास क्लाइंट आके बैठेगा, आपको उस पीरियड के बीच के अंदर बीच में आपको क्लाइंट से सब कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। एंड जो आपका क्लाइंट होता है वो उसको लॉ के बारे में ज़्यादा क्लियरली पता नहीं होता, तो आप उस जो अपने क्लाइंट हैं उनसे प्रॉपर लीगल लैंग्वेज में बात नहीं करते, आप उस लैंग्वेज में बात करोगे जिसमें आपका क्लाइंट समझे कि आप उन्हें बता क्या रहे हो, आप क्या क्या रेमेडीज दे रहे हो। तो कंसल्टेशन राउंड में 21 मिनट्स में क्लाइंट आपके पास होगा, फिर आपके पास बाद में होगा पोस्ट कंसल्टेशन टाइम। इसके अंदर आपको अपने काउंसलर के साथ, जो आपके साथ दूसरा एडवोकेट है, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करनी है कि क्या क्या आप लीगल रेमेडीज उनको दे सकते हो, क्या क्या मतलब क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स आप उनको सजेस्ट करोगे। एंड ये सारी कॉन्वर्सेशन जो जजेस होंगे वहाँ पे, वो आपके वहाँ पे बैठ के आपके सुनेंगे। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी क्रिटिक राउंड। क्रिटिक के अंदर जजेस आपसे क्वेश्चन पूछेंगे इस रिगार्डिंग कि आपने क्या सजेशन उनको दिया है, क्या नहीं दिया है। तो एज आई सेड कि 3 राउंड्स होंगे, प्रीलिमिनरी, सेमीफाइनल और काउंसलिंग। हर राउंड का अलग अलग टाइम होता है। जैसे प्रीलिमिनरी के अंदर आपको 21 मिनट्स मिलते हैं फॉर कंसल्टेशन, लेकिन सेमीफाइनल में यू विल गेट 24 मिनट्स फॉर इट, एंड इन फाइनल्स यू विल हैव 25 मिनट्स फॉर कंसल्टेशन राउंड। आफ्टर दैट पोस्ट कंसल्टेशन के लिए यू विल हैव 5 मिनट्स इन प्रीलिमिनरी काउंसलिंग, एंड इन सेमीफाइनल यू विल हैव 6 मिनट्स फॉर पोस्ट कंसल्टेशन, एंड फाइनल्स के अंदर यू विल हैव 8 मिनट्स। मतलब हर राउंड के हिसाब से टाइमिंग चेंज होती रहती है, जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे टाइमिंग भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती रहती है। एंड जो हमारे काउंसलर्स होते हैं उनको प्रॉपर ड्रेस कोड में रहना होता है, जैसे लाइक यू हैव टू वेयर योर शर्ट, वाइट शर्ट एंड ब्लैक कोट विद प्रॉपर टाई एंड ब्लैक ट्राउजर। मतलब आपको प्रॉपरली अपने ड्रेस कोड में रहना पड़ता है। एंड इसके लिए भी आपके जजेस होते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं। एंड एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि नॉलेज तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होती है काउंसलर्स के लिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ साथ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जो कि होता है कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो लाइक जो सिंपल क्वेश्चन है ना, आपको उसका भी आंसर नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा ना, तो जजेस जो हैं वो वहीं पे आपको उस चीज़ के भी मार्क्स देते हैं कि इसमें कॉन्फिडेंस कितना है, बॉडी लैंग्वेज इसकी कैसी है। तो छोटी से छोटी चीज़ होती है वो यहाँ पे काउंट होती है, तो आपको प्रॉपरली ये सब कुछ देखना पड़ता है। एंड जो हमारा क्लाइंट होता है,
जो क्लाइंट होते हैं बेसिकली वो ऑलरेडी एक प्रॉब्लम में होता है, वो आपको क्लियरली ये नहीं बताएगा कि मतलब उसके साथ क्या हो रहा है। एज एन एडवोकेट ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको छोटी सी छोटी माइनर सी कोई भी इंफॉर्मेशन है आपको अपने क्लाइंट से लेनी है। सो दैट्स इट कि मतलब छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन आपको निकलवानी पड़ती है, ये सब कुछ इसके रूल्स में होता है। थैंक यू सर। Sir, can we start with the demonstration? Yes, Arif, you can start. Ritika, Gaut, Yes, sir. अच्छा बताया आपने. There's 3 rounds. Very first term is round is pre-consultations, post-consultation, and फिर इसके बाद आता है मतलब critics, means जिसमें judges question answer पूछते हैं, right? ठीक है. इसके बाद अब जैसे मेन पॉइंट आपका ये होता है, जैसे जो क्लाइंट जब आपको अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो आपने इमीडिएटली है ना अपना माइंड सर्कुलेट करना कि ये किस लॉ में फॉलो कर रहा है. लाइक जैसे क्रिमिनल लॉ में फॉलो कर रहा है. अब जैसे आर्य ने बताया था कि फैमिली लॉ में जा रहा है, तो फैमिली लॉ में क्या क्या इश्यूज क्या है ना, वो अब फैमिली लॉ का 1 मिनट में आपका क्या है सेटअप हो जाना चाहिए कि कौन से सेक्शन में फॉलो कर रहा है. तो आपके माइंड में वो इंग्रेडिएंट, उस सेक्शंस के इंग्रेडिएंट आपके माइंड में होने चाहिए और वो इंग्रेडिएंट आपके कंप्लीट होने चाहिए और फिट फॉर द केस, राइट. सो as the demo with you all, Stuti and Aditya as a counselor, and who is the client? Shiva is client. Yes, Shiva is a client. शिवा सर. Okay. Yes, Shiva, you can switch on your camera, beta. Good evening, sir. So very good evening, beta. Okay, let's start with the demo. Yes, you can start with us. And one more Welcome thing, to Parveen ma'am, you also judging the event also, right? Okay, your time start now, beta. welcome to the ANS firm. I am Stuti. And I am Advocate Aditya. Welcome, sir, to our AN firm. Nice So to meet you. Before we start, sir, we wanted to ask where did you get our reference from? I came to know about your firm that it is a very reputed firm. That is why I approached you. Indeed, Thank sir, you, sir. you have come to the right place. Sir, first of all, please be comfortable and be relaxed, and please tell us your problem, that what happened to you. प्रॉब्लम सर क्या बताऊं सर, फ्रॉड हुआ मेरे साथ. और सर मुझे जिस कंपनी ने मेरे साथ फ्रॉड किया, मुझे उस कमर बिहाइंड बात चाहिए सर. ओके सर, आप सो सॉरी टू हियर कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है. सर आप प्लीज़ हमें थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, सो दैट हमें पूरे चीज़ पता लगे डिटेल में कि क्या हुआ है, तो उस हिसाब से हम आपको फिर फर्दर गाइड भी कर सकते हैं और फर्दर आपको बता भी सकते हैं. सर क्या बताऊं सर. सर अपनी अच्छी बढ़िया कंपनी चल रही थी. सत्यपाल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है, बॉम्बे में सिचुएटेड है. तो क्या हुआ कि हमारी जो कंपनी है वो डील करती है बेसिकली लेडीज गारमेंट्स में. बट ऐसा हुआ कि हमने कहा कि हम अपना बिजनेस को एक्सपैंड करें. तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के चक्कर में हमने मेंसवेयर के लिए एक कंपनी के साथ डीलिंग स्टार्ट कर दी. बस वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई सारी. सर कंपनी के बारे में आप और बता सकते हैं? कंपनी का नाम मैम एबनी लिमिटेड है. कहाँ पे होगी सर ये कंपनी? मैम ये चेन्नई में लोकेटेड है. चेन्नई में. सर आपने कहा कि आपकी भी एक कंपनी है, तो सर आप किस उसमें क्या चीज़ का काम करते हैं, किस चीज़ की आपकी कंपनी है, आप हमें वो बता सकते हैं थोड़ा? जी हमारा काम वैसे तो लेडीज वेयर में था, बट हमने ओवर द ईयर्स बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए मेंस वेयर में भी डील करना स्टार्ट किया था. ओके सर ओके फिर सर. प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? प्रॉब्लम मैम ऐसी थी
मैंने ये एबनी लिमिटेड को अप्रोच किया, उनके साथ अपनी डील हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उन्होंने हमें गुड सप्लाई करने थे। बट उन्होंने जो हमें गुड सप्लाई किए, उन गुड्स की क्वालिटी पुअर थी, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड थी वैसी क्वालिटी नहीं थी बिल्कुल। ठीक है सर। ओके सर, तो सर आप हमें थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं कि कब आपका ये जो था आपने उनके पास अप्रोच किया, कौन सी डेट, या अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो आप थोड़ा बताएं उस बारे में। नहीं सर, डेट तो नहीं याद होगी, बट मंथ था जनवरी 2020। सर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? यस मैम, कॉन्ट्रैक्ट था। ओके, तो सर कॉन्ट्रैक्ट कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट में आपने किया था या फिर ऑरल और वर्बली आपने किया था? सर रिटर्न था, बिल्कुल रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। Written contract। तो सर उसके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कि अ, आपने जो उनके पैसे दे, आपने बोला कि आपने कपड़े लिए उनसे, तो सर कितने कपड़ों की डील हुई थी, या फिर आपने कितने पैसे उनको बोला था कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा तो आप हमें इतने कपड़े दीजिए? तो आप हमें थोड़ा उस जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बारे में बता सकते हैं? जी, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हुआ था 5 लाख वर्थ के दूध उन्होंने हमें सप्लाई करने थे। 5 लाख। ओके, सो सर आपने 5 लाख उन्हें पूरे पूरे पे किए थे अकॉर्डिंग टू, जैसे आपने कहा था कि 5 लाख की वो, कि आपने कहा कि आपने वो 5 लाख उन्हें दिए, तो सर आपने, उन्होंने आपको प्रॉपर पूरे कपड़े दिए थे 5 लाख के बदले में? जी, हमने ना एक पेमेंट शेड्यूल डिसाइड किया था उनके साथ, एबनी लिमिटेड के साथ। तो ठीक है। जिसमें था कि पहले वो हमें 3 लाख के गुड सप्लाई करेंगे और हम उनकी पेमेंट कर देंगे उनको, ठीक है। उसके बाद हमें 2 लाख को सप्लाई करेंगे, तब हम उनको बाकी पेमेंट कर देंगे। 2 लाख की पेमेंट आपने कहा था। तो सर आपके अकॉर्डिंग आपने 3 लाख की फुल पेमेंट उन्हें कर दी थी और उन्होंने आपको कपड़े दे दिए थे, और आप हमें ये बता सकते हैं कि आपने 3 लाख की पेमेंट कब की थी, कोई उसकी डेट अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो? जी, जो 3 लाख की पेमेंट थी एज पर कॉन्ट्रैक्ट हमने एग्री किया था 31 जनवरी को, और 31 जनवरी को हमने पेमेंट कर दी थी और उन्होंने हमें गुड्स दे दिए थे। ठीक है सर, 31 जैन को आपने उन्हें 3 लाख दिए और उस कंपनी ने आपको 3 लाख प्रॉपर उसके कपड़े दे दिए आपने। तो सर आपने कह रहे हो कि आपने फिर 2 लाख के कपड़े वो आपने कब दिए, उसकी कोई डेट इफ यू रिमेम्बर? Yes, Siva, beta, please loudly. Siva, please loudly. ओके सर। जो 2 लाख की हमारी डील थी, उसमें ऐसे हुआ था कि पेमेंट तो हमने 2 लाख की नहीं की थी, ठीक है। बट कंपनी ने एग्री किया था कि हमें वो 2 लाख की गुड सप्लाई करेगी। सर आर यू श्योर कि अग्री हो गया था दोनों के बीच में? जी हाँ, बिल्कुल। जो एबनी लिमिटेड थी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रही थी, और जो हमारी कंपनी थी, हमारा भी एक उससे पहले जब हमने फर्स्ट ऑर्डर से मंगवाया था, तब हमारी उनके साथ हमारा आगे अपने बायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या हुआ, वो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैरी आउट नहीं हो सका, जिस करके हमें लॉसेस हो गए। तो एबनी लिमिटेड ने हमें अप्रोच किया, वो कहते कि आप 50,000 की पेमेंट ले लो और हम आपको बाकी जो 2 लाख वर्थ के गुड्स हैं वो आपको डिलीवर कर देंगे। ओके ठीक है सर। सर। तो सर सर आपने प्लीज मैम। सर आपने पहले कोई एक्शन लिया है इसके बारे में, कोई भी लीगल एक्शन पहले लिया हो अगर? मैम, लीगल एक्शन ऐसे तो मैंने नोटिस भेजे थे उनको, बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। नोटिस की सर डेट्स याद हो अगर आपको? डेट मैम एक्चुअली जो नोटिस थे, जब हमें एक तो डिलीवरी सेकंड लॉट की मिली, और वो डिलीवरी भी सर हमें लेट मिली थी, तो डिलीवरी हमें स्पेसिफाइड डेट पे नहीं मिली। तो वो सर हमें आप डिलीवरी 2 अप्रैल को। डेट ओके आप सर। बता सकें अगर, और जिस दिन डिले हुआ था अगर आप वो भी बता सकें तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जी, 21 मार्च को मैंने उनको 50,000 की पेमेंट कर दी थी, फुल एंड फाइनल।
और उन्होंने हमें गुड्स सप्लाई किए 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को। जो कि डिफेक्टिव और पुअर क्वालिटी के थे। ओके, तो सर आपके अकॉर्डिंग 21 मार्च को आपने 50,000 उन्हें पे किया, लेकिन उन्होंने आपको कपड़े नहीं दिए उस दिन, और उन्होंने जो कपड़े दिए वो दिए 2 अप्रैल को। जी जी बिल्कुल, तो और सर वो आप भी पुअर क्वालिटी के। पुअर क्वालिटी कपड़े, बिल्कुल। ओके सर, तो सर आप हम मेरे को एक बार ज़रा थोड़ा 2 लाख और 50,000 का थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि 2 लाख की बात हुई थी लेकिन वो 50,000 में आगे ख़त्म हुई है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अप्रोच किया था उन्हें, या फिर वो आपके पास आए थे 50,000 का कि आप हमसे 50,000 रुपये वो कर लें? जी नहीं, एबेनी लिमिटेड ने हमें अप्रोच किया था। Urban Limited है। और सर ये डेट, इफ यू रिमेम्बर, की डेट कौन सी थी जिस दिन आपने सेकंड 2 लाख की बात वो 50,000 में खत्म हुई आपकी? जी 21 मार्च को। 21st। 21st। थैंक यू सर। सर फिर अब आप रिलीफ क्या चाहते हैं? रिलीफ मैम, मुझे ये चाहिए कि जो मुझे लॉस हुआ है वो मुझे रिकवर हो जाए मेरा लॉस, और मुझे इस कंपनी के साथ कोई डीलिंग नहीं चाहिए आगे से। ठीक है सर। ओके सर, तो सर आपके अकॉर्डिंग अभी तक की 50,000 की बात हुई थी, आपने 50,000 उन्हें पे कर दिया, लेकिन उन्होंने जो है वो कपड़े जो है पुअर क्वालिटी के भेजे आपको, ठीक है सर? जी जी सर ये तो हम आपको बता रहे हैं कि दिस इज द क्लियर ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सर उसके अकॉर्डिंग कि हम आपको जो है वो कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं कोर्ट से। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, जो भी आपका खर्चा होगा आने जाने का, जो भी लिटिगेशन एक्सपेंसेस जिन्हें हम लॉ उनका रोएंगे। बोलते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको कपड़े भी जो आपको पुअर क्वालिटी के उन्होंने दिए हैं वो भी हम आपको चेंज करवा सकते हैं थ्रू कोर्ट, अगर आप चाहते हैं तो सर आप हमें एक बार। जी सर। नो सर, मुझे इस कंपनी के साथ अब डील ही नहीं करना, मुझे मेरा रिफंड मिल जाए जो मेरा लॉस इनकर हुआ है बस। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर जो आपने एक और बात आपने कहा कि आपने उन्हें नोटिस भेजा, तो सर आपने हमें बता सकते हैं कि आपने नोटिस कौन सी डेट को भेजा था? जी नोटिस मैंने भेजा था 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल। 2 3 अप्रैल अप्रैल। गुड्स डिलीवर किए थे सेकंड लॉट वाले, और 3 अप्रैल को मैंने नोटिस इशू करवा दिया था। ओके, तो सर आप हमें थोड़ा सा बता सकें कि आपने नोटिस के अंदर क्या क्या, कि आपने नोटिस के अंदर क्या क्या चीजें आपने लिख के जी जो आपको उन्होंने एबनी को भेजी थी आपने? जी जो जब मैंने नोटिस भेजा तो उसमें मैंने यही लिखवाया था कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो उन्होंने और हमें जो गुड्स भेजे थे वो उस क्वालिटी के गुड्स नहीं है, तो मैं चाहता था कि वो कंपनी हमारे साथ एक्सचेंज कर ले वो जो गुड्स हैं, या मेरा जो रिफंड है वो वापस कर दे मुझे। ठीक है सर। तो सर कोई रिप्लाई उनकी तरफ से आया था? जी नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया सर। नो मैम नो। ओके, तो आपने 3 अप्रैल को उन्हें नोटिस भेजा, लेकिन उन्होंने कोई उसकी जिसके लिए एक्शन नहीं लिया, उन्होंने ना रिप्लाई किया ना देखा, ठीक है सर? सर नो सर। जितना आपने हमें अभी तक बताया है उसके रिगार्डिंग तो सर हम आपको ये बता सकते हैं कि हम आपको बिल्कुल पूरी कंपनसेशन दिला सकते हैं। मोर बिल्कुल ओवर सर। सर, we also can provide from the court you the compensation regarding the poor quality of the goods, also the litigation expenses, and lastly अगर आप चाहते हैं तो हम आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लॉ की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हम, कि जो आपको कपड़े पुअर क्वालिटी के थे उसको हम बोल सकते हैं कि एवेन्यू उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो सर आप हमें एक प्रेफरेंस बता दें कि अगर आप क्या चीज़ ज़्यादा प्रेफर करते हैं? जी नहीं, आप मुझे कंपनसेशन ही दिलवा दो। मैं सर आप कोई नहीं। ठीक है सर। तो सर आपने सर एक लास्ट क्वेश्चन कि जी। जो आपने नोटिस उन्हें भेजा था, उन्होंने आपने डेट बोला 4 अप्रैल, तो सर आपने उस चीज़ का जो लीगल नोटिस था वो आपने किसी एडवोकेट के थ्रू भिजवाया था या कोई फर्म, या कहाँ से, थोड़ा आप उसका आइडिया दे सकें?
जी हमारे नोन में थी एक, तो उसके थ्रू हमने भिजवाया था नोटिस। हमें था कि वो कंपनी एक्नॉलेज करेगी और हमें गुड्स दे देगी दोबारा जो प्रॉपर क्वालिटी के होंगे, बट कंपनी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया, तो मुझे आपके पास आना पड़ा। ठीक है सर। ठीक है सर, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं। मैम बस मुझे रिकवरी हो जाए मेरा जो लॉस हुआ है। जी सर। सर अब बिफोर कि हम उस फर्दर प्रोसीड करें, हम चाहते हैं कि आप एक नॉन डिस्क्लोजर रिपोर्ट साइन कर दें। ये नॉन डिस्क्लोजर रिपोर्ट बेसिकली ये इसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी यहाँ पे बातें हुई हैं ये सिर्फ हमारे बीच में रहेंगी। ये हमारी फर्म की भी एक पॉलिसी है कि जो भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो भी हमारे क्लाइंट की बात हो कहीं बाहर ना जाए। सो सर मैम इज सेंडिंग यू, अगर आप चाहते हैं तो वो आपको ईमेल भी कर एड्रेस या ईमेल, जैसे भी सर आपको ठीक लगे। मैम आप ईमेल कर दीजिए, मैं आपको साइन करके सेंड कर दूँगा। ठीक है सर, बिल्कुल श्योर। मैम आप प्लीज़ लिंक सेंड कर दें इन्हें, उस ईमेल कर दें रिगार्डिंग द नॉन डिस्क्लोजर रिपोर्ट। एंड सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके बिल्कुल समझ गए हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। एंड सर आई एश्योर यू कि हम आपको 1.5 लाख, अगर आप जहाँ की 1.5 लाख के 2 गुड्स थे, 50,000 आपने हमें दे दिए। तो सर आप हमें एक और चीज़ लास्ट में बता दिए कि आप क्लेम कितना चाहते हैं, कि आपको कितने का नुकसान हुआ है? कि जी जितना कितने? मेरा नुकसान हुआ है 1.5 से 2 लाख के गुड्स थे, वही उन्होंने क्वालिटी खराब के गुड्स भेज दिए और वही मेरा नुकसान है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ कि मेरा वो जो नुकसान है वो रिकवर हो जाए। सर आप सर, हम बिल्कुल अपना टेंशन मत लीजिए। 100% देंगे इस चीज़ को। सर एंड अगर आपने, यस मैम प्लीज। लास्टली सर, हम वकालतनामा के बारे में बात कर लें। श्योर मैम। तो सर, वकालतनामा इज़ बेसिकली आप हमें राइट देते हो आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो नॉन डिस्क्लोजर के साथ हम आपको वकालतनामा भी सेंड करेंगे, एंड आफ्टर यू ओके साइन इट we'll be able to represent you. ओके मैम। सर आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप बोल रहे हैं 1.5 या 2 लाख का है, हम आपको गारंटी उससे ज़्यादा ही क्लेम करवा के देंगे। एक तो सर जो आज जिस तरह से आपने हमें बताया उसके अकॉर्डिंग, एक तो हम आपको 1,50,000 जो आपका नुकसान हुआ है वो तो दिलाएंगे ही दिलाएंगे। साथ में हम इवन की जो आपकी लिटिगेशन कॉस्ट होगा वो भी हम कोर्ट के सामने प्रेजेंट करेंगे कि हमारे, कि आपको आने जाने का खर्चा, जो भी आपका टाइम स्पेंड हुआ है कोर्ट के अंदर उसका खर्चा वो भी आपको दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा हम अगर चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि जो आपको, एक तो आपने कहा कि उसने, आपने जो उनको 21 मार्च को पेमेंट कर दी थी, लेकिन आपने बाद में जो था उन्होंने कपड़े लेट डिलीवर किए, उस चीज़ के लिए भी हम कोर्ट के अंदर इस पॉइंट को रख सकते हैं। और उस चीज़ के लिए भी आपको जितना लॉस हुआ उस टाइम के दौरान वो भी हम कोर्ट के सामने जो है वो पॉइंट रख सकते हैं, वो लॉस भी आपको हम कवर कर सकते हैं सर आपका। तो सर आप ओके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एंड लास्टली सर, अगर आपको कोई भी और चीज़ याद आती है रिगार्डिंग दिस, फील फ्री टू आइदर कॉल अस और मैसेज अस और ईमेल अस। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू Thank you for सर। coming here, sir. सो मैम, Advocates, can I ask a question? यस मैम। Yes, मुझे थोड़ा सा Parveen एक ma'am, चीज में Parveen ma'am, just जी a minute. This is a post consultation round. अब इनका टाइम है, इसके बाद then we can ask any questions. done. So ma'am, according to me, I think first we will discuss the little about the facts and we'll further proceed with this. So according to me, till now the information we have received from our client is his name is SP and he is living in Bombay and operates a company called SP Limited. And he, in order to expand his business, he approaches to another company called Ebony Limited Company. So according to, can you tell me ki what is, where is the Ebony situated? So, as per the facts stated by the client, it was in Chennai. Chennai. So the SP is residing in Bombay and the company Ebony is in Chennai. So I think we have to start a little bit discuss about the jurisdiction first.
and later, according to me, this is a case of the breach of contract. And I think, Yes, sir. yes, ma'am. Ma'am, section 73, I guess, deal with the. Can you please confirm? Section 73. Yes, sir. It is Section 73 of the Indian Contract Act. It provides for compensation for the breach of contract. Yes. Yes, ma'am. So in the present case, as the fact stated by the SP, I think we can also use the Sales of the Goods Act, because it is clear that he is dealing with some kind of goods, that menswear garment. So first we have to prove that it is a contract of sale. So for that we have to wait for the documents or the Indeed, sir. Before that, before anything else, we need to wait for the documentation. Yes, then further first, in order to proceed further, I think the Sales of Goods Act talks about the contract for the sale, its procedure. So we will refer to that also. And under section Indian Contract Act, the it talks about the breach of the contract, and we also provided the client is the compensation regarding the breach. And he, Compensation is a good way to go because the client also preferred yes, for the compensation. He did not wanted any kind of settlement or any specific performance. The client wanted compensation. yes. So I think the compensation section, contract act and sales of goods acts are the two which we would refer in further proceed. And section 73 and I guess section 4 and 5 deal with the sales of the goods act Goods regarding Act. contract for the sale. So I think we can provide him a proper justice regarding this, and we can also provide him the claim regarding the 1 lakh, and certain provisions are also given in the CPC regarding the expenses. So we can also provide him the expenses regarding the whichever the litigation cost he is facing regarding the court fees, process fees. Yes, Right? sir. Yes, and if moreover in CPC, first we have to discuss the jurisdiction, because I think there is gonna be the problem regarding the jurisdiction, because the SP is living in where Bombay, and the company Ebony is in Chennai. So I think according to me, he can we can file the case in both the courts, either in the Bombay court also, in the Chennai court also. So I think according to the more suitability of our client, we should file Bombay. case in the Bombay. Bombay Yes. district. Yes, yes, ma'am. Any other thing you notice regarding the facts which we can use? I think the time is over. Yes, sir. Okay, yes, Praveen, man, first you can ask any. मुझे एक चीज आप लोगों से पूछनी थी. आपके क्लाइंट ने बोला कि एवरीथिंग हैपेंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन टू अप्रैल इन 2020. जो भी हुआ उसके बाद वो आपके पास आया ऑलमोस्ट 2021 में. तो Yes, इतने लॉन्ग टाइम में व्हाट ही वाज डूइंग, वो कर क्या रहा था इतने टाइम में? आई थिंक आपने इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो रेज नहीं किया. हाउ यू विल सेटिस्फाइड द कोर्ट? कैसे आप कोर्ट को सेटिस्फाइड करेंगे कि इन एक साल में जो था वो कैसे आप कोर्ट को इतनी लॉन्ग डिले के लिए आप कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? 1 ईयर का गैप क्यों आया? indeed, ma'am. Indeed, ma'am. In the April, there is a provision that suit can be filed within the 3 years, and our case in within the 6 to 7 month delay only. So we can justify the court by regarding he is facing the financial losses. Moreover, he loses the profitable contract with its large booking agents. So in all this mental tension, in order to satisfy their large agents, they're busy. The SP Limited is busy in but consoling the, please don't totally lose the contract. Please just wait for a second. Wait for some time. I'll do something. So we can proceed that in that direction. And also, ma'am, it wasn't like the client did nothing. He also told us in his facts that he'd sent 2 legal notices, and So in the that, other party did not acknowledge it. yes. Yes, Aditya, tell me, which court have jurisdictions in this case? Sir, according to the section 20, the Honorable District Court of Bombay and Chennai both have the jurisdiction.
According to that section, according to the facts which our client has told us, it is upon the SP where he want to file the case. In the facts which the SP has told us, the cause of action arises at the Bombay. Ebony from the Chennai delivers the good from Chennai to the Bombay, and at Bombay, SP find that the quality of garments were poor. So at that time, the cause of action of the plaintiff arises. So according to section 20C clause C, we can file the case in Bombay, but section 20 further states that where the defendant reside, it is the choice of the plaintiff where he want to file the suit. And for the more suitability of the plaintiff, I think the Bombay District Court is more appropriate. Okay. What do you think? What is the appropriate remedies for your client? So the appropriate remedy for the client in this case, and as per the situation and as per the facts that the client has told us, would be asking for compensation under section 73, because first it was preferred by the client, and second, here we can prove the breach of contract. There was a remission that was... Any other remedies? Can you provide? So we could... Yes, ma'am. If you want answer. What? Okay. Under which act? Sir, under specific relief act also, as section 19, I guess, deal with the specific performance. We can also provide our client a specific performance, but as our client prefer morely to the claim, so according to us, the more suitable is to file the claim regarding the damages which our client is facing, and moreover, we can also provide him the litigation expenses. Okay, it is not section 19, beta. It is section 10. Section 19, clause A and clause B of specific relief act. Okay, fine. Yes, Praveen madam, I want to ask anything? No, I'm satisfied. Okay, fine. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Vita. So this was the